Hi, I'm Manmeet, one of the Meet brothers. And you're watching us on Filmy Beat. Keep watching. Pleasure to work with Meet Brothers. I've known them for years. They have known me for years rather. Everybody's expecting you to be doing what they've seen you doing. या आपका पुराना जो भी काम ज़्यादा पॉपुलर हुआ है तो लोग उसको ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं आपसे. Tiger 3, can we expect a song from you? I don't know. Mithun ji was very, very clear in his approach. So he was looking at recreating the songs in terms of giving tribute to the original composer, original makers. So वो जो intention था वो बहुत clear था. It's something that people are not expecting us to do, so I think that's what we should be doing next, for sure. Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal and today I am with a music composer and a singer जिनका एक गाना लोगों को बहुत पसंद आया. Actually उन्होंने बहुत गाने दिए हैं पहले, but ये वाला recent release है उनका and it's one of the most soulful songs I've heard in recent times. I'm talking about मेरी हर शाम. और आज मेरे साथ है मनमीत and Palak and we're going to talk to them about the song. Hi guys, welcome to Filmy Beat. Thank you. So first of all, I would like to start by asking you guys किस तरीके से ये song आप लोग ने बनाया, कब सोचा we have to collaborate and do something like this? I think Harmeet and I have been very desperate to always use Palak's voice because I think it's one of the most melodious voices we have in this country. And वो हमने last एक मुलाकात किया था for Dream Girl, which obviously became so liked by everybody. It's such a big song. तो we were thinking कभी-कभी कुछ melodies आती हैं जिसमें आपको समझ में आ जाता है कि ये singer ही इसको justify कर सकता है. This has a typical Indianness, and I think Palak aces it. She just knows how to sing these kind of melodies. And Palak, you were like, आपने जब पहली बार गाना सुना, how was your response? You were like कि मैं तो ये गा के रहूँगी. First of all, it's always a pleasure to work with Meet Brothers. I've known them for years. They have known me for years rather. And the minute I got a call from Manmeet ji, I was very excited because the song was already a famous song, Meri Har Sham, and they were making a female version of the song. And the minute I heard the song, it sounded like my kind of song, you know, that typical my genre. And when I came, it just flowed. We didn't have to make much effort. It just came naturally, and I'm so happy that people are connecting with it. Right. You know, I would like to know when you know, music composers and singers, you guys both have Meet Brothers and Palak. There's like a kind of dependability, I would say, कि fans expect a lot. So whenever, be it this song or any other song, whenever you collab or you do separately also, is there a pressure कि we have to deliver something, like, because fans की expectations बहुत ज़्यादा होते हैं? I think जब हम गाना बना रहे होते हैं उस वक्त हमारे माइंड में दिमाग में फैंस और लिसनर्स नहीं होते. In fact, that's the process of creating. When you're creating, you're not thinking about any second person. That's the most beautiful part. When you create something, it just comes out. And जैसे the excitement was कि let's do something together. And you know, when we were dubbing, मतलब मज़ा आ जाता है कि आप जैसा चाह रहे हो सिंगर वो गा रहा है फिर उसको और बढ़िया कर रहा है. तो ये एक प्लेजर ही अपने आप में इतना है कि देन यू उस फिर आप भूल चुके हैं कि पसंद आए नहीं आए, वो हमारे हाथ में होता ही नहीं है. सो अपन जो इतना हमारे हाथ में उतना ही सोचते हैं. What about you? I feel that rather than pressure, I'd like to use the word responsibility. Of course, when you have several people following you, loving you, there is a sense of responsibility. But like he said, I really like that, you know, we actually feel like we are in a divine space and nothing else outside that studio world matters. Till actually the song is about to come out and then that jitter start coming in. But the creative process is a high in itself, and it's just like he said, when I sing something that he wants out of me, I really find joy in just seeing his face, and when he says "mil gaya," you know, that is quite satisfying. So I think that I think responsibility is something that I definitely feel. और बस यही लगता है कि शायद इस गाने को भी उतना ही प्यार मिल जाए जितना अभी तक के गानों को मिला है. Right. You know, जब हम मीट ब्रदर्स की बात करते हैं, you guys have composed romantic songs, but of course आप लोग वो peppy dance numbers के लिए ज़्यादा, like मैं मीट ब्रदर्स सुनूँ मेरे दिमाग में बेबी डॉल चिट्टिया कलाइया पहले आ जाता है. So whenever आप लोग जब ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स कंपोज करते हैं, क्या फैंस के थोड़े से सरप्राइजिंग मैसेजेस आते हैं आपको कि सर हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था पर आपने ये भी कर दिया? हमेशा ही आते हैं. They always, I think everybody is expecting you to be doing what they've seen you doing. या आपका पुराना जो भी काम ज़्यादा पॉपुलर हुआ है तो लोग उसको ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं आपसे. सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि when they message and say कि ये तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि
जैसे हमने गाना किया था OMG फर्स्ट जो थी Yeah. मेरे निशान, मेरे निशान। वो 90% लोगों को तो पता ही नहीं कि हमारा गाना है, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये मीब्रो सा गाना हो सकता है. सो इट्स एब्सोल्युटली ओके, वी लव गिविंग सरप्राइजेस. Right. But like I would like to ask you, you look so gorgeous. Thank you. ज़्यादा म्यूजिक वीडियोस में हम आपको क्यों नहीं देखते? कि आपको नहीं लगता कि मैं गाऊंगी, मैं ही आ जाऊंगी एक्टिंग करने? ये सवाल तो मेरा भी है. I don't know, I have a lot of like checklists, if you can call that. Lot of boundaries, lot of preferences. So वो जब सारी tick mark होते हैं वो बहुत कम हो पाता है. So whenever that happens, I feature. But yeah, काफ़ी सारे मेरे दायरे हैं जो मैं ध्यान में रखती हूँ, उस वजह से कम हो पाता है. But हाँ, singing, as long as singing is happening, I'm happy. Right. You know, of course, ये हमारी इंडस्ट्री में ट्रेंड है about recreated songs का. First of all, I have to say Mithun has done amazing work with Gadar 2. एक भी ऐसा मोमेंट नहीं लगा कि गाना ruin किया गया या something like that. Even with you guys, बहुत ही rarely आप लोग ने recreated versions को touch किया. I think hardly a couple of songs होंगे. What do you have to say about this trend? और अगर makers आपके पास आते भी है और to compose or to sing, what's there in mind कि हमें किस तरीके से इसको present करना है? I think most important is that the original essence of the original composition cannot be touched. You can't play around with it. जैसे हमने कभी बहुत सारे गाने जब भी करे हैं, कुछ पार्टी सॉन्ग्स, जैसे हमने हाई हील्स किया था, वो हनी सिंह का ऑलरेडी हिट गाना था, तो हमने उसकी रैप और बीट को नहीं टच किया, लेकिन हमने कॉम्पोजिशन पूरी नहीं करी. एंड इवन मैं तेरा बॉयफ्रेंड हो गया, जब भी कोई नया गाना, हम पुराना गाना जब नए तरीके से करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि वो पुरानी जो उसके अंदर जो कंपोज़र ने जो रूह डाली है ना, उसको ना छेड़छाड़ करो उसके साथ. एक फिल्म थी जिसमें हमें उन्होंने बोला था वो कांटे नहीं कटते रिक्रिएट करने के लिए, तो हमने उसके 3-4 वर्जन बनाए, तो उनको प्रोड्यूसर को पसंद भी आ गया, पर हमें समझ में आ गया ये तो हमने पुराने गाने को ख़राब शायद कर दिया. तो हमने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, सर हम नहीं कर पाएंगे, हमसे हो ही नहीं रहा, क्योंकि कुछ चीज़ कभी होती कभी नहीं होती. तो ये भी जो आप जैसे बात कर रहे हैं गदर के गानों की, कि वो पुराना एसेंस भी था लेकिन एक नयापन भी था. आई थिंक वो पलक की आवाज़, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ थी कि लगा नहीं कि एक्चुअली लगा ही नहीं कि आप पुराना गाना सुन रहे हैं, ऐसा लगता है नए गाना सुन रहे हैं, वो जल्दी चढ़ रहा है क्योंकि आप उस गाने को जानते हैं. So like I want to know कितना प्रेशर था उड़ जा काले जो एक आइकॉनिक सॉन्ग है उसको रिक्रिएट करने का? You know, the pressure directly didn't come on me because Mithun ji was very, very clear in his approach. So he was looking at recreating the songs in terms of giving tribute to the original composer, original makers. So वो जो intention था वो बहुत clear था, और जब आप एक tribute के intention से करते हो, ना कि दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई थिंक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. एंड लाइक ही सेड, जब तक आप उसकी सोल को इंटैक्ट रख रहे हो गाने की, आई थिंक इट्स अ रियली ब्यूटिफुल वे फॉर द करंट जनरेशन टू गेट टू हियर द ओल्डर मेलोडीज़. सो वो ऑलरेडी जिस तरह से परोसा गया था गाने के लिए, वो ऑलरेडी सेट था, तो मुझे सिर्फ गाना था, और मेरी भी इंटेंशन ओरिजिनल सिंगर्स को ट्रिब्यूट देने की ही थी. सो वो कुछ कंपटीशन या करके दिखाने वाली सोच नहीं थी. सो वाज क्वाइट नाइस. या राइट. तो जैसे आपने कहा कि व्हेन यू हियर म्यूजिक पीस एंड यू फील केस में पलक की वॉइस सूट होगी, as I said that you are known for creating this peppy numbers, but आपने बहुत कम peppy numbers गाए. Correct. Can we expect a collab here? Actually, कि it's a जहाँ very good पे Yeah. पलक is actually singing like a proper peppy song. Actually, a very good idea. I think it's something that people are not expecting us to do. So I think that's what we should be doing next, for sure. थैंक यू. So lastly before I wrap up this Q&A session, I would like to know कि what's happening next. आपके कौन से गाने आ रहे हैं? आपको I think I'll be very honest, पलक बहुत बार लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते रहते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है, पलक का नेक्स्ट क्या आ रहा है. ये मैं सोशल मीडिया से मेरे कमेंट्स पढ़े हैं आपके इंस्टाग्राम पे जाके. What's happening? They're listening to the current one, but they want to know what's happening next. So what's happening for you, both of you? Please start. बहुत सारे अमेजिंग गाने हैं. इनफैक्ट आई वाज जस्ट शेयरिंग विद दीप, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू टेल बट आई एम नॉट सपोज्ड टू. सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फेज फॉर मी, एक्चुअली द मोस्ट एक्साइटिंग फेज पर्सनली एंड प्रोफेशनली. एंड अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग सॉन्ग्स ऑल्सो सम अदर थिंग्स आर हैपनिंग एज वेल. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली जब आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचे, उम्मीद है बहुत सारा प्यार मिले. What about you? Yes, so it's always a process. वही होता है कि कुछ गाने फिल्म्स में आ रहे हैं, कुछ सिंगल्स में आ रहे हैं. So जैसे ये गाना है, अब ये कितना ऑनेस्टली हमें नहीं लग रहा था कि कोई हम गाना अपना पुराना ही जब दोबारा लाएंगे तो उसका ऐसा रिएक्शन आएगा कि सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे गाना ट्रेंड करता रहा है. So which is a great thing, and I think we need to now do more original stuff with Palak, and then also
there's a lot of stuff coming on NB Music and कुछ फिल्म्स आ रही हैं अभी हमने वेलकम 3 का आपने देखा होगा वेलकम टू द जंगल का जो एक्कापेला है जो हिस्ट्री में पहली बार एक्कापेला हुआ है वो हमने क्रिएट किया है सो इट वाज वेरी डिफरेंट इट वाज अ चैलेंज फॉर अस कि 28 एक्टरों से कौन को उनकी वोकल्स भी यूज़ करने हैं और कोई एक भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है सो वी लव डूइंग इट बिकॉज इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट तो उसमें थोड़ा टाइम लगा लेकिन इवेंचुअली आई थिंक आपने देखा ही है वेलकम टू द जंगल का थीम कैसा लग रहा है इट्स अमेजिंग तो पलक आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग whenever a Salman Khan film is coming, it is expected कि पलक का एक गाना होगा. Tiger 1 में आपने गाया था, I think लापता गाया था आपने. In Tiger 3 can we expect a song from you? I don't know. maybe not. Okay, so I think this is a very since you mentioned Salman bhai, Salman is from our school, Sindhya School Gwalior, right? And हम लोगों ने साथ में एक 2003 में वर्ल्ड टूर किया था जिसमें हम सिंगर्स थे उनके शोज में. उसके बाद हमारा टच लूज हो गया उनसे. एंड जब हमने तब हम म्यूज़िक बनाते भी नहीं थे वी वर जस्ट सिंगर एंड देन वी स्टार्टेड कंपोजिंग एंड देन यू नो एक डेस्परेशन थी कि सलमान भाई के साथ यू नो गाना करना है तो हरमीत ने उस पर काम शुरू किया कि कैसे पहुँचे उसने कम से कम मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं उसने अपनी लिस्ट बनाई कम से कम 70-80 लोगों की जो जिनके थ्रू सलमान भाई तक पहुँचा जा सकता है सब ट्राई कर लिया नहीं हो पाया एक दिन पलक के साथ हरमीत की बात हो रही थी तो उसने बोला ऐसे ऐसे कि आप भाई के साथ इतने गाने करते हो कैसा है तो आपको भी करना चाहिए इसने कहा मैं इतना ट्राई कर चुका हूँ कि कभी हुआ ही नहीं कहती आप एक काम करो नंबर लो और डायरेक्ट कॉल करो तो हरमीत ने कहा मेरा फ़ोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे उसने आप कॉल तो करो और इन्होंने शायद उनसे उनके कान में डाल दिया तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया और बोले कि अरे तुम दोनों कहाँ हो और मैं बोला सर कब से ट्राई कर रहे हैं कोई आप तक पहुँच ही नहीं पाते उन्होंने कहा कल ही आ जाओ हम अगले दिन गए हमने उनको 7 गाने सुनाए जिसमें 6 गाने उन्होंने बोला ये गाने आप किसी को नहीं सुनाओगे और उसी में से हमारा हैंगओवर हम जो किक फिल्म मिली थी वो लिटरली उसी सिटिंग की वजह से मिली थी तो वी ऑलवेज थैंक हर बिकॉज ऑफ हर वी गॉट टू वर्क विद सलमान खान